بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. The path to Allah subhanahu wa ta'ala is a path that cannot be done without mujahida. Mujahida in the Arabic language actually refers to what is effort or joy. Right? And इस मुजाहिदे और एफर्ट के बगैर हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. This is actually so simple that we even understand this principle in the dunya. Right? The ayat of the Quran, while laysa lil insani illa ma sa'a, also refers to the same word. That इंसान जिस चीज की कोशिश करता है उसको वही मिलता है, वही हासिल करता है. So we all must make that journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. We all must make that mujahida effort. सारी की सारी कोशिश हम सबको करनी है. And the one reality that we all must understand is the fact that once we make that journey, हमारा वो सफर बहुत slow होगा. क्यों slow होगा? Because of the nafs, because of desires, because of distractions, because of dunya, because of so many things that we've surrounded ourselves with. तो ऐसे नहीं है कि मैं आज फैसला करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला की विलायत हासिल करनी है, मुझे अल्लाह को 100% राज़ी करना है, मुझे कभी मोमिन बनना है, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे मुकम्मल चलना है, तो ये कल हो जाएगा. बहुत सारे लोग अपनी उस इंटेंशन में सिंसियर हैं, but then the mujahida part is what they're not willing to do, and then the distractions get the better of most of us, right? So हमारी मिसाल एक्चुअली ऐसी है कि हम ना स्नेल से भी फारिग हैं ज़्यादा. So if you look at a snail, you hardly see it move. पर अगर आप उसको चंद दिन देखते रहे, तो you realize कि at least वो एक टाइल मूव कर चुका होता है, which might be insignificant, but actually it's moved. The reality, my friends, is this: that a lot of us, if we do our jaiza and muhasaba from week in and week out, ठीक है, तो हम कहीं भी move नहीं करते. ठीक है, हम कहीं भी move नहीं करते because we are paralyzed. And one of the reasons for that paralysis, spiritual paralysis, I would say, is the fact कि हमारे पास कोई fuel नहीं है. ठीक है, we don't have any fuel to sort of move forward. And that fuel is two things that I want to speak to you about tonight. That is ilm and ishq. Right? ये दो चीजें हैं जो जरूरी हैं, इल्म और इश्क, और इन दोनों के बगैर जो है ये रास्ता नहीं कवर हो सकता. So what is ilm? Ilm is basically the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, the knowledge of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the knowledge of Kitabullah, Quran Kareem, Quran al-Majid, right? इन चीज़ों का जो इल्म है ये essential है हमारे लिए. But what form of ilm is this? Right? Is this some form of ilm जिसमें जो है ना हमें इस बहस में उलझना है कि हनफी ठीक है या शाफी ठीक है? क्या ये ऐसा है कि इसमें हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि नमाज में हाथ ऊपर बांधने या नीचे बांधने, या इंजीनियर अली मिर्जा ठीक है या मुफ्ती तारिक मसूद ठीक है? Right? This is not that ilm actually. This is the ilm which tells you that what is the will and wish of Allah subhanahu wa ta'ala about you. कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आपके और मेरे बारे में क्या इरादा है, वो क्या चाहते हैं हमसे. It is the ilm which tells us that what was the murad, what was the irada of the Prophet sallallahu alaihi wasallam about us, right? So in that notion, सिर्फ एक बात reflect करके सोचो. Most of you, and I think it's been more than a month or so that बयान नहीं हुए. I've not been here, and then जब आया भी तो I was traveling किसी न किसी वजह से. So some of you come here every week, right? So just use that as a reference. So from one Wednesday to the next Wednesday. Or if you don't come regularly, use the Jummah as a reference, right? Because I think, alhamdulillah, all of us pray the Jummah Salah, right? Use that as a reference that एक जुमे से लेके दूसरे जुमे के दरमियान, where has my ilm of Allah subhanahu wa ta'ala gone? ठीक है? What has happened to my ilm of the Quran? What has happened to my ilm in terms of being like the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Has there been any increase? And sadly आपको क्या नजर आएगा कि कुछ बदल नहीं रहा होता.
और इल्म ऑफ द दुनिया बढ़ता चला जाता है, ज़्यादा मालूमात है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा इरादे हैं, ज़्यादा चीज़ों पे साइन अप करते चले जा रहे हैं। इल्म ऑफ द दीन कुछ नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं बढ़ रहा। सो आई मीन इफ आई वाज टू आस्क ऑल ऑफ यू एंड माई सेल्फ इवन प्रॉब्ली दैट पिछले एक हफ्ते में आपने कुरान की किस आयत पे तदब्बर किया, तफक्कुर किया, गौर किया, इंटरनलाइज किया, चलो सिर्फ उसको पढ़ के पसंद किया? प्रॉब्ली नन। एक आयत, वन सेंटेंस, राइट? हालांकि वी आर पीपल कि व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कोई अच्छी ट्वीट नजर आ जाए ना, रीट्वीट कर देंगे। कोई अच्छी तस्वीर नजर आ जाए, सब पे शेयर करेंगे। कोई अच्छा स्टेटस नजर आ जाए, खुद भी छाप लेंगे। व्हाट अबाउट द कुरान? व्हाट अबाउट द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कि इन दैट वन वीक हमने कितनी हदीसों पे गौर किया, कितनी हदीसों को देखने की जहमत की। एंड द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली have already spent years of our life in this state of ghaflat, in this state of utter heedlessness, right? कि जहां हम week in week out ये करते चले जाते हैं. And the way time is flying, you recognize that through the fact कि Ramadan is a religious benchmark for all of us, right? And हमें पता ही नहीं चलता कि एक रमजान गुजरता है, अगला फिर आ जाता है. And you know, we're very excited जब रमजान आता है, we're all thinking हम नेक होंगे. The question really that we should be asking is the fact that between the two Ramazans हमने क्या किया, right? What have we done in between these, in the 11 months that Allah Ta'ala gave to all of us? So the first thing that we all have to understand is this, that हम सब के सब एक सफर पे हैं, हम सब के सब एक जर्नी पे हैं. और पता है ये नहीं, अगर एक स्टूडेंट मेरे पास आ जाए और मुझे आके कहे कि सर कुछ समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ वो नहीं हो रहा, एंड आई आस्क हिम कि अच्छा मुझे बताओ कि क्लास में गए थे? नहीं. क्विज दिया था? नहीं. असाइनमेंट की थी? नहीं. मिड टर्म दिया था? नहीं. फाइनल दिया था? नहीं. यूनिवर्सिटी गए थे? नहीं. कोर्स लिया था? नहीं, कोर्स भी नहीं लिया, लेकिन बैठा बहुत परेशान है. तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? Wait, you really think there is any way to help that person जो वो बेसिक्स ही नहीं कर रहा जो करने की जरूरत थी? In a very similar sense, right? How do you think कि दीन ये कोई मुआजिज़े तो है नहीं ना, कोई दम दुरूद तो हो नहीं सकता कि हम जीरो एफर्ट करें, जीरो कोशिश करें इल्म वाले पर्सपेक्टिव से, एंड हमें दीन आना शुरू हो जाए. आप एक नौकरी पे देख लें. I mean, if you are an employee, there are SOPs, there are job descriptions, there are expectations, to the extent that जो अदने से अदना एम्प्लॉय भी है ना, उसको भी डेली टास्क दी जाती है, बताई जाती है, या उसको पता होता है. Then there is a weekly review, then there is a monthly review, then there is a quarterly review, then there is a biannual review, then there is an annual review, then there are appraisals, right? कोई दुनिया की कंपनी उसके बगैर नहीं चल रही. तो why in the world do we think that इस स्ट्रक्चर, इस हिसाब, इस जर्नी के बगैर हम किसी भी तरह अल्लाह के दीन पे चल सकते हैं? ये सदका थोड़ी है कि किसी को 10 रुपए पकड़ा दिए और कहा कि हाँ यार सारा कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स अ जर्नी. तो हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली recognize the fact कि हमने वो सफर जो है ना वो शुरू करना है? बिकॉज जब इस चीज का एहसास ही नहीं है हमें कि हमने वो सफर शुरू करना है, तो आप जिस भी उम्र में हैं, जैसे भी हैं, चीज ठीक नहीं होगी. व्हाट इज अप विद द माइक? अब्दुल्ला, कोई मसला है नीचे? ठीक है या नहीं ठीक? Okay. So, you know, if you don't follow these steps, progress will be zero. And really, we need to get our daily dose. We need to get our daily dose. Now, understand one thing, that for whatever reason, the Sahaba Quran actually got their daily dose. Did not mean कि रोज दरसे कुरान हुआ करता था, रोज दरसे हदीस हुआ करता था, बट एक वो साहिब दिल थे, साहिब ज़बान थे, साहिब फरासत थे, साहिब मोहब्बत थे. तो आप ये सोचें कि हाउ अमेजिंग इज इट दैट वन, यू हैव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराउंड यू, अल्लाहु अकबर, देन यू गेट टू सी द प्रॉफिट सल्लल्लाहु एज योर इमाम. तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु आपके इमाम है नमाज में. ही इज योर कारी, ही इज द वन
जो रोज बराह रास्त जब अल्लाह का कलाम उतर रहा है तो आपको नमाज में वो सुनाते हैं, एंड आप अपना दिल पेश करके वो सुनते भी हैं, उसको समझते भी हैं, रसूलुल्लाह से जो है ना उस पर अमल होता भी देखते, एंड देन इट्स एन अमेजिंग जर्नी, राइट? You know, the Sahaba would be gathered around the Prophet ﷺ every single day because they recognized कि यहाँ रोज कुछ सीखने को मिलता है. Every day was an intensive for them. And then they learned to balance that part with the dunya. अब आप इसी तरह देख लो, that kid who goes to university today, वो रोज कुछ सीख के आता है. अच्छा बुरा एक अलग बात है, वो रोज सीखता है. And by the end of 4 years, he is a graduate in chemistry or biology or I don't know, whatever he's economics or business, right? That person who's in the corporate sector office में वो रोज कुछ सीखता है. That's why चंद महीनों बाद वो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर है, फिर उससे ऊपर डायरेक्टर है, फिर कोई और चीज है, because वो सीख रहा है. Then companies, and then there are intensives, right? Then there are intensives. So you know, a company will take you out and put you in training for several weeks, जहां आपकी learning exponentially grow करती है. A university will take you out and you know put you to study in the final weeks of the exam. एक हफ्ता आप टिका के पढ़ते हैं जितना शायद आपने पूरे सेमेस्टर में नहीं पढ़ा. But the reality, my friends, my brothers and sisters, is the fact कि ये सिर्फ इंटेंसिव पे गुजारा नहीं हो सकता. The best of us इंटेंसिव पे गुजारा कर रहे हैं. जुमे के जुमे को थोड़ा सा देख लिया, एक्चुअली रमजान के रमजान, ये रोज की प्रैक्टिस है. हमें रोज कुछ करना है, ठीक है, चाहे वो एक आयत एक हदीस ही क्यों ना हो, तो हमें दीन समझ आना शुरू होगा, राइट? हमें दीन समझ आना शुरू होगा. तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं एक्चुअली जो कई हफ्तों से इधर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कई महीनों से आ रहे हैं इधर से, मतलब इस बयान पे या किसी भी बयान पे आप जा रहे हैं जहां आपको फायदा महसूस होता है. कुछ एक्चुअली ऐसे हैं जो सालों से आ रहे हैं. So you should ask yourself, what have I gotten? Right? Other than the feel good factor, right? हम सबको ये सवाल करना है कि हम चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे. Because so many of us actually, हम आते हैं, we hear, we learn, we make different intentions, and that's the karam and the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala कि अल्लाह की बात में और नबी अलैहि सलाम के कलाम में इतनी जो है ना, उनकी बातों उनकी सुन्नत में इतनी बरकत है. But then before the next Wednesday, हम सब खो चुके होते हैं. We've lost all of it actually. In fact, for some people अगले दिन ही सब भूल चुके होते हैं. For some people निकलते साथ सब भूल चुके होते हैं. Right? That's not how the Sahaba Karam lived their lives. Right? That's not how the Sahaba Karam lived their lives. So the ilm of Allah subhanahu wa ta'ala is basically the will and wish that Allah has about us. It is the will and wish that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam had for us as an ummati. ये सुन्नत की डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि लोग सुन्नत को समझते नहीं हैं. The sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the irada that he had for me and you. It is how he wants to see me and you on the day of judgment. ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की, right? So you know, it's as if कि मेरे नबी मुझे ऐसे देखना चाहते हैं. So the question is, am I even trying for that? क्या मैं उसकी कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ? अजीब बात नहीं कि अल्लाह मुझे एक हालत में देखना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक हालत में देखना चाहते हैं, राइट, जिसमें जाहिर बातें सब शामिल है, एंड मैं इतना गाफिल हूँ उससे कि आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट. In fact, some of us even mock that. When you belittle the word Maulvi, by the way, you're actually mocking the deen. We belittle that. And then yet we expect कि हमारी जिंदगियों में सुकून होगा, खुशी होगी, चीजें बेहतर होंगी. And yet we expect कि हम बहुत कोई जबरदस्त काम कर रहे हैं. तो खुद सोच लो ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना. अभी मैं the other day in university I was telling kids that you know, दीन में ना हम कहते हैं इस्लाम हमारा मजहब है, ठीक है, रिलीजन है. It every word has been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. The word deen in Arabic comes from dain, and dain कहते हैं कर्ज को. So why does Allah want to use that? So when we say Islam is our deen, dain and कर्ज means that Allah Ta'ala philosophically is explaining to us कि हम अल्लाह के मकरूज पैदा हुए, हम पैदा ही अल्लाह ताला के मकरूज हुए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये जो मकरूज होने का नोशन है ना, कि ये है कि मैं अब इस कमांडमेंट को ऐसे फुलफिल करूंगा, इस कर्जे को ऐसे उतारूंगा कि मैं अल्लाह की रजा पे चलूं.
बट क्या वजह है कि हमारा बच्चा तो जब बाशऊर होता है 13, 14, 15 साल, उसको लगता है मैं तो आई हैव एवरीथिंग इन माय ओन, मुझे अल्लाह का क्या ताल्लुक है मेरी जिंदगी से. एपेथेटिक. दिस इज द प्रॉब्लम. हाउ मेनी ऑफ अस फील दैट वी आर इंडेटेड टू गॉड? वी डोंट फील दैट. इनफैक्ट हर एक को गिले हैं अल्लाह ताला से, हर एक को गिले हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. अजीब थर्ड क्लास सवाल, राइट? इस किस्म के सवाल जिनकी कोई तुक भी नहीं होती, अक्सर हम दे देते हैं आपको सारी बातों के जवाब. But the sort of questions that people are now asking even don't have any value. And we really have to be worried about that. कि यार हम किस डायरेक्शन में निकल गए, हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे. बिकॉज ये जो नोशन है मकरूज पैदा होने की, आप अभी मुझे कोई बता रहा था और मैंने कई जगह से सुना है, जो फ्लड्स आए हुए, तो out of the tremendous natural atrocity that these people are going through, may really Allah make it easy for them. And we're living in a 5-star luxury over here. We can't even understand कि वहाँ क्या तकलीफ है. तो they were saying कि बहुत राशन पहुंच चुका है, बट जहाँ जो वहाँ के वडेरे हैं वो राशन आगे जाने नहीं दे रहे. एंड they are saying what, कि हम चाहते हैं कि ये लोग आके घुटने टेके हमारे आगे, ये मिन्नतें करें, ताकि इनको याद रहे कि यहाँ का जो है ना, who is the mini god here, right? And you realize because people are so desperate in a negative sense, they will still accept that authority. आप देख लो कि जो कहते हैं ना, वो गांव देहातों में लोग वडेरे के आगे, चौधरी के आगे बात ही नहीं कर सकते. That is the level of submission that people are willing to have for a ration box of 4, 5, 6, 7, 10,000 rupees. And what about that creator who created me and you? जिस खुदा ने मुझे तुम्हें पैदा किया है और समझाया है philosophically कि I am the Rabb and you are the Abd, and slavehood to Allah Ta'ala is the most emancipating, liberating concept that one can have. Because Allah का गुलामी जो है ना, इंसान को जलील नहीं करती, इंसान को एक्चुअली अपलिफ्ट करती. आपको महसूस होता है कि सहाबा कराम ने वो गुलामी चुनी और वो जलील हुआ दुनिया में. अल्लाह ने उनके मकामों को ऐसा बुलंद किया कि सहाबा तो रश, वो सोचा करते थे कि हम किस किस्म की कौम थे, कि दुनिया हमें जाहिलियत के दौर में तस्लीम करती थी और 23 साल के नूरे नबूवत ने हमें आधी दुनिया में हुकूमत करने का मौका दे दिया. That's slavehood to God that got them there. That's ittiba sunnat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that got them there. But हमें तो सुन्नत के नाम से जो है ना वहशत है, right? हमें तो लगता है कोई ऑप्शनल, किस पागल ने कह दिया आपको? Who in the world told you कि सुन्नत जो है ना वो ऑप्शनल है? Anybody who thinks of that is crazy. He's an insane man, has to be told. You think the path that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walked on us is optional? ये तो the fuqaha had to create that notion in a very different sense. वो तमीज फुकाहा ने इसलिए क्रिएट की, वो बाइफर्केशन, क्योंकि उसका एक इल्मी ताल्लुक है. अच्छा, इफ यू थिंक इट्स ऑप्शनल, ठीक है, फाइंड मी वन सहाबी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कहा ये ऑप्शनल है. यार 1,24,000 सहाबा, कोई एक तो होगा ना. आई एम नॉट सेइंग कि कौन कितने % अमल कर रहा था. आई एम सेइंग ये जो एटीट्यूड हमारी नस्ल में एग्जिस्ट करता है कि हम किसी को जुर्रत नहीं करने देते कि कोई हमें सुन्नत के बारे, अब सुन्नत क्या, लोग तो फर्ज के बारे में नहीं बात करने देते. आप कह सकते हैं किसी, यू हैव द गट्स कि यू कैन टेल योर कॉलीग एट द यूनिवर्सिटी की यार क्लास ले ले, इंपॉर्टेंट है. यू कैन टेल योर कॉलीग एट ऑफिस की डेडलाइन मीट कर लो, वरना जो है ना बॉस से वो होगी, एंड ही विल नेवर माइंड. यू कैन नॉट डेयर से टू हिम कि नमाज पढ़ लो. नमाज दैट इज फर्ज, वाजिब, दैट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ दिस दीन, उसको हम नहीं कह सकते, लेट अलोन के कोई सुन्नत की बात कर सके. व्हाट हैज हैपेंड टू अस? What has happened to us? यानी, do we not take this man as a nabi? Do we not remember the fact कि रबियुल अव्वल इसलिए आया है कि हम केक काट के सेलिब्रेशंस करें, कुछ नाते पढ़ लें, कोई कॉन्फ्रेंस करा लें, बस that's it, finished. I mean, if our emotions are heightened in this month, we really have to think of this, yaar. We really have to think of this. Because if being an ummati is not optional, then following the sunnah is also not optional. अगर उम्मती बनना जरूरी है आपको लगता है, सुन्नत फॉलो करना भी जरूरी है. एक सहाबी ने ऐसी कोई बात नहीं की, एक सहाबी ने. So it's about understanding कि जो सुन्नत है ना, ये वो हुलिया है, ये वो
अंदाज है, ये वो अखलाक है, ये वो अदाएं हैं, ये वो सोचने का जाविया है जो अल्लाह और उसके नबी ने हमारे लिए पसंद किया। अल्लाह को हम ऐसे अच्छे लगते हैं, अल्लाह ताला को बस हम ऐसे अच्छे लगते हैं। हम दफ्तर जाते हैं, आपको वो कहते हैं कि हमारा ड्रेस कोड है, हमें आप ऐसे चाहिए, आप ऐसे हो जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपको कहते हैं कल्चर ये कह रहा है, बस ये आप ऐसे हो जाते हैं। आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वीज़ा लेने जा रहे हैं, भी मिलना भी नहीं है, आप वो होलिया बना के जाते हैं जिससे आपको लगता है वीज़ा मिल जाएगा। ऐसे ही हम जिधर जाते हैं हम अपने आप को तब्दील करने को तैयार हैं। तो क्या एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद ऐसी हस्ती रह गए कि जिनके लिए हम अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं हैं? अभी वो पिछले दिनों हम अपने स्कूल में जो है ना, बच्चों के जबरन बाल कटवा रहे थे, बिकॉज वो डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से। तो एक बच्चा मुझे, मैंने उसको पकड़ा तो उसने कहा सर मैं करीम बेंजेमा की तरह जो है ना ड्रेसअप किया, वो मैंने बाल जो है ना उसकी तरह कटाए हैं। सीरियसली मैं उसको पहले तो ये भी समझाना चाह रहा था कि तुमने अपनी शक्ल और बेंजेमा की शक्ल देखी है, ठीक है, तुम्हें वाकई लग रहा है तुम बेंजेमा हो, ठीक है, नहीं उसकी सिफात और तुम्हारी सिफात में फ़र्क पता है तुम्हें, उसकी पर्सनालिटी और तुम्हारी में फ़र्क पता है, इधर इसको लग रहा है मैं बेंजेमा हूँ। बट इट isn't it stunning, isn't it shocking to you that a grade 7 8 child, ठीक है, sitting in Pakistan is willing to be like Kareem Benzema because he sees him kick the ball well, right? Which shows to you how human nature is. He wants to imitate Benzema. He wants to dress up like him, cut his hair like him, चाहे वो कितना ही वाहियात क्यों ना हो, कैसे ही ना लगे, कोई भी हो जाए। It means that we were programmed to imitate people. हमें अल्लाह ताला ने एक चिप हमारे अंदर डाली थी कि हम किसी और को कॉपी करना पसंद करते हैं। तो कॉपी तो सारे कर रहे हो, हर कोई कॉपी कर रहा है। तो या नबी को कॉपी कर लो या किसी और को कर लो। तो अगर किसी और को करना है तो आखिरत में उनसे शिफात करवा लेना, आखिरत में उनकी लाइन में खड़े हो जाना, उनके साथ हिसाब करवाना। अलमरउ अला दीन खलीली, उनके दीन पे उठाए जाएंगे। अलमरउ मअ मन अहब्ब, उनके साथ उठ जाना, बिकॉज आप उनकी सुन्नत पे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे नहीं है। तो उनके उम्मती बन जाए, कहीं खुल के, because our lives are screaming that. Nothing else, our lives are screaming that actually, that we want to be on that path. So you know what? If you think it's really hard, it's not possible, दुनिया को साथ लेके चलना है, ऐसे है, वो है, I tell you this one thing, all of that is rubbish. When the Sahaba had to do it, it was harder. When the Sahaba were told to do it, there were people mocking them like anything. They had to give up their dunya. They had to leave their families. They had to make great sacrifices. मैं और आप, not even 1% of that test is being put to us. And we think it's hard. If you think I'm lying, पढ़ ले, तारीख पढ़ लो. You think Abu Bakr anhu ऐसे बस Abu Bakr बन गए? You think he had it easy for himself? Do we not see the pain? But then that is where उनका मकाम जो है वो उस चीज पे पहुंचा है जिसको हम वो नहीं कर समझते नहीं है। साउंड का मसला है अभी भी। Why didn't you guys test it before? अब्दुल्ला, what is the issue? क्यों टेस्ट किया था पहले? You want me to bring this closer? ये तो चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा तो ठीक कैसे? We can wait. क्या इशू क्या है, माइक में है या इस माइक का? तो वाइड ले आओ या इस वाले को यूज कर लो। Abdullah, can we use the same mic for the broadcasting? हाँ, नहीं वो तो मुझे पता है, हम अगर सेम कर लें तो, बिकॉज एम से ही आ रहे हैं ना दोनों।
देखिए शुरू से नहीं अभी वॉइस नोट सही अब चल रहा है. शुड आई स्टार्ट? तो we have to attain that ilm which makes us follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which makes us according to the will and wish of Allah subhanahu wa ta'ala. So I tell you this, that एक सवाल ये भी किया जा सकता है कि how did we end up here, यानी ये इतनी मिजरेबल स्टेट मुसलमानों की कैसे हो गई आज, ये पाकिस्तान में रहते हुए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, इस्लामिक, how is all of this happened? And without, there can be 100 reasons for this. One part I say to you, one of the biggest problems is the destruction, the systematic destruction that our education system has done to us. I hope you recognize that. I am not saying तालीम नहीं हासिल करनी. I am not saying O levels नहीं करना, A levels नहीं करना, bachelors नहीं करना, masters नहीं करना. I am just saying, जाते आप डिग्री लेने हैं, ठीक है, निकलते आप बेसिकली जो है ना किसी और चीज़ के साथ है. एक जाते हो, दो वापस आते हो. मुसलमान जाते हो, एथियस्ट बाहर निकलते हो. ये तो अदल नहीं है, ये तो कोई तालीम नहीं है. तालीम है ही वो एक्चुअली वैसे भी जो तरबियत के साथ आती है. तरबियत का तो नामो निशान मिटा दिया आपके स्कूल्स ने एक्चुअली. खत्म, इट्स बीन फिनिश्ड एक्चुअली इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड. सो हाउ इन द वर्ल्ड आर वी एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ ठीक होगी? बट देन मोर देन द नेगेटिव ऑफ इट, डू यू रियलाइज कि द इल्म दैट इज बीइंग इम्पार्टेड देयर, उसके साथ जो चीज़ें पैकेज की जा रही हैं, ऑल ऑफ देम आर डिजाइंड कि वो इल्म हमें अल्लाह से दूर लेकर जा रहा है. तो सिस्टमैटिकली एक्चुअली बहुत सारे लोग ना चाहते हुए उस रास्ते पे चले जाते हैं. अभी उस दिन मुझे एक वालिद कह रहे थे कि हम क्या करें, यानी हम अपने हाथों से अपने बच्चों को तबाह करें इन स्कूल और ऑर्गेनाइजेशंस में, इन जगहों पे भेज के. एंड ही वाज वेरी राइट इन सेइंग दैट. सो एक चीज़ जो की जा सकती है वो ये है कि हम सिर्फ इतना समझ जाएं कि इल्म फिर कितनी ताकतवर चीज़ है. सिर्फ ये समझ जाओ कि अगर दुनिया का इल्म इतनी ताकत कुव्वत रखता है कि अपनी तमाम खराफात और कमज़ोरियों और इम्परफेक्शंस के बावजूद वो आपके और मेरे बिहेवियर को चेंज कर देता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, उनकी सुन्नत, उनकी सीरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान मजीद, वो कितनी ताकत रखता होगा, कि वो हमें कितना करीब कर सकता है अल्लाह ताला. बट क्या इल्म है हमारे यहाँ क्या इल्म पढ़ाया जाता है दीन से रिलेटेड? कारी साहब घर आ जाते हैं, वो जैसे आते हैं और जैसे पढ़ाते हैं आप सबको पता है. इस्लामिया स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो जैसे पढ़ी जाती है हम सबको पता है. तो और हमने कहाँ दीन का इल्म हासिल किया? माँ बाप नमाज सिखा देते हैं बस एज ए यार्ड स्टिक कि जी हमारा बच्चा नमाजी है. बेहतरीन वो हैं जो हिफ्ज करा लेते हैं बच्चों को ताकि 10 टिकटें मिल जाएं जन्नत की साथ हमें. वो जैसे हाफिज है वो भी हमें पता है. तो आपको और मुझे एक चॉइस करनी है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, that it is farz upon every single Muslim to attain ilm. That we are not required to be muftis and alims and molanas and shuyukhs. But yes, I want to embark upon a journey of ilm. What is that journey? Maybe, every single day I want to look at one ayat of the Quran. Maybe I want to, hear one hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and think about it. That's ilm. मैं मान ही नहीं सकता. I cannot agree to the fact कि जो शख्स रोज कोई एक चीज दीन की for just even 5 minutes पढ़ रहा है, सुन रहा है, गौर कर रहा है, वो उसकी जिंदगी ना बदले. हो ही नहीं सकता है बात. हमारे पास वो 5 मिनट भी नहीं है अल्लाह ताला को देने के, राइट? 5 मिनट भी नहीं. फिर इल्म के साथ दूसरी चीज है इश्क, and that is मोहब्बत. एंड ये तो ऐसे उड़ाई गई है कि मैं अक्सर इस बात को रोता हूँ कि हमारे वालिदैन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हमें अल्लाह का तारुफ कराते हैं बट अल्लाह से मोहब्बत का तारुफ नहीं कराते.
हम उनकी गोदों में अपने नबी का नाम सुनते हैं, बट ये नहीं सुनते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, उसको कभी नहीं समझाया जाता। वो कॉन्सेप्ट एलियन है लोगों के लिए, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट एक्चुअली। एंड व्हाट इज अल्लाह ताला सेइंग इन द कुरान, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, that the people of Iman, they are extremely intense in their love for Allah subhanahu wa ta'ala. That allazina amanu की सिफत ही, that's how Allah recognizes them, कि उनकी ईमान की निशानी है ही। अल्लाह इज नॉट सेइंग दैट वो बहुत कोई जो है ना क्या कहते हैं कवि हैं और वो सारी रात तहज्जुद, अल्लाह इज सेइंग वो अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं। कितनी हमारी नस्ल जो है ना अल्लाह से प्यार करती है। हम बहुत सारी चीजों से वी लव डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लव वाचिंग क्रिकेट, पागल हैं क्रिकेट के पीछे, ऐसे नहीं। पीपल आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट इन दिस कंट्री। आप कहेंगे हलाल शौक पे छेड़े, नहीं छेड़ते। आप देखें क्रिकेट, हार गया ना पाकिस्तान, और देखें अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बहुत सारी उम्मीदें बनेंगी, अल्लाह करे वो उम्मीदें ऊपर तक जाएं, टूट भी जाएंगी, मायूस नहीं होते। लेकिन यानी इन द पास्ट 10-15 years I have seen the Pakistani team disappoint us like anything, and I'm not anti the Pakistani team, Pakistan और क्रिकेट, ठीक है, मैं भी कभी मौका मिल जाए तो एंजॉय करता हूँ, बी वेरी ऑनेस्ट, बट यू गाइस जस्ट डोंट गिव अप। अब हिम्मत नहीं हारते, यू सो पम्प्ड अप कि नहीं देखना इस दफा ऐसे होगा, अब शाहीन आ गया, अब ये हो गया, नाउ वी हैव बाबर, नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, अब ऐसे, अब फाइट है, एंड यू गिव अप ऑन योर दीन सो इजीली। यानी एक मौलवी एक गलत काम करे, आपका पूरा इस्लाम खत्म हो जाता है, बस सब खत्म। यू नो, मैं इसलिए नमाज छोड़ रहा हूँ क्योंकि फलाने मौलवी ने ये किया था, और सुभान अल्लाह। मैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ता क्योंकि इतने सारे फिरके हैं। मैं डेट पे इसलिए गया था बिकॉज बहुत फिरका वारियत है, सुभान अल्लाह। मैं ड्रग्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि रफा यदैन करना है या नहीं करना। इतना परेशान किया हुआ ना मुझे इसने कि हाथ ऊपर बांधे या नीचे, इसलिए मैंने कहा ड्रग्स कर लेते हैं। यही एक्सक्यूज है ना, पूछ के देख ले लोगों से। क्योंकि हम मौलवी लड़ते रहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं जाके जो है ना एज अ मर्द औरतों से प्यार करना शुरू कर दूं। ये तो है। क्रिकेट से कभी मायूस नहीं होंगे, कभी मायूस नहीं होंगे। लव प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्रेजी अबाउट वीडियो गेम्स, सम ऑफ अस, खबर नहीं पड़ता। लव बीइंग एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, घंटों निकल जाएंगे। लव वाचिंग नेटफ्लिक्स। मैं यूनिवर्सिटी में कह रहा था, द नाइविटी विद व्हिच सम किड्स विल आस्क मी कि सर नेटफ्लिक्स में क्या मसला है। तो कुर्बान जाए तुम्हारी फिरासत पे, तुम्हारी मासूमियत पे, कि यू आर आस्किंग कि मुझे शक होना शुरू हो गया कि शायद को मैं को गलत दीन पढ़ के कि सर मसला क्या है नेटफ्लिक्स में। बिकॉज आई वांट टू आस्क यू कि मसला क्या नहीं है नेटफ्लिक्स में। बट दिस इज द स्टेट ऑफ द उम्मा, बिंज वाचिंग, दैट्स व्हाट यू कॉल इट, राइट? One after the other. And what are you watching? Filth, absolute filth. Whether it is content that is pro-LGBTQ, whether it is content that is full of romance, whether it is violence, whatever it is filth on secular grounds, by the way, not even religious grounds. But we're watching it. We love watching it. Right? The Sahaba Karam were attached to Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. अब ये भी समझो, like all other things, चल रहा है नहीं चल रहा, कि हमारा जो दिल है ना, वो अल्लाह ताला ने पैदा ही ऐसे किया है कि वो मोहब्बत करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो जब आप और मैं उसको अल्लाह और नबी की मोहब्बत से खाली कर देंगे, तो वो किसी और चीज से मोहब्बत करेगा, वो किसी ना किसी और चीज से मोहब्बत करेगा। ऐसा नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं करेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इस बर्तन में क्या भरते हैं। आप इस बर्तन में अल्लाह की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरना शुरू कर दें, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं आपको एक वैसे मिसाल देता हूँ, यानी माय किड्स आर रियली यंग, आई डोंट नो व्हाट दे विल गो ऑन टू डू, एंड अल्लाह आसानी करे उनके लिए, बिकॉज टीन एजेस इज व्हेन यू रियली स्टार्ट टू रियलाइज। सो वन ऑफ द स्कूल्स दैट आई एम इन, योर कमिंग जनरेशन इज क्रेजी अबाउट दिस BTS क्रैप, ठीक है? मुझे तो पता ही नहीं था ये BTS क्या होता है, चंद हफ्ते पहले ही मुझे पता चला। जैसे के पॉप, कोरियन पॉप जो है ना, इतने पागल हैं कि अपेरेंटली देयर इज दिस आर्मी कि आप उनके खिलाफ बात करें तो लोग नाराज हो जाते हैं आपसे।
और मैंने एक ही दफ़ा खाल उतारनी है, मैंने तैयारी की भी है, देखिए ठीक है। बट आई तो आई वाज इट वेरी फैसिनेटिंग कि क्या चीज़ है। चाहे गूगल आप तो देखा मैंने, वो काफ़ी सारे पिंक येलो ब्लू ग्रीन लड़के, ठीक है, लड़के लगते भी नहीं है, एंड देन दैट्स व्हाट इट इज़ राइट नाउ, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। बट सो दैट्स व्हाट kids are watching and growing up, ठीक है, and you could have an alternate to that. So just yesterday I was sitting with my daughter and finally I had some time कि मैं उससे गपशप करूँ, ना भी मैं उससे कुछ बात कर रहा था, and you know she's what 9 इस वक्त, she was telling me that मैं उससे पूछा था तुम्हारा कुरान कैसे चल रहा है ये वो, and she was saying नहीं मुझे कारी साहब का एक्सेंट नहीं पसंद इतना, हालांकि we have a great कारी, you've heard him, लेकिन मुझे शेख जोहेनी बहुत पसंद है और मैं नेचुरली शेख जोहेनी की तरह पढ़ती हूँ, ठीक है। एंड यू नो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बच्चे है ना, मैं से एंड मैं एंजॉय ये बात कर रहा था कि शी नोज हु शेख जोहेनी इज, एंड आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस हर कि नहीं नहीं यू नो शेख बलीला इज द स्वीटर वन, नहीं नहीं शेख जोहेनी बहुत जबरदस्त है, एंड देन शी टोल्ड मी कि ये सूरत लगाएं, ये देखना ये बहुत जबरदस्त है, मुझे ऐसी आती है, एंड यू नो दैट्स वन वे दैट किड्स कुड बी रेज्ड अप। एंड आई सेड अ डिस्क्लेमर, आप ये बयान ले लो बाद में मेरी बेटी जो है ना नेकी नो, आई रियली डोंट नो, वो तो अल्लाह के हाथ में, बट एक एक्सपोजर की बात है ना, you give your kids a positive exposure, वो क्यों नहीं रिसीव करेंगे। अल्लाह ताला ने दीन कोई गैर फितरी तो नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने दीन कोई ऐसा तो नहीं बनाया कि जिसको देख के आपको यार पता नहीं क्या चीज़। जहां अल्लाह ने हमें मौसीकी क्यों पसंद आती है, बिकॉज इट्स अ ट्रीट टू द ईयर्स, बट जो कुरान की लज्जत से महरूम है उसको तो फिर ये बीटीएस वाली बकवास ही पसंद आएगी ना, उसको क्या अच्छा लगेगा। जो कुरान सुन ले, उसमें डेल्व कर ले, उसकी खूबसूरती को महसूस कर ले, उसको कभी बीटीएस पसंद नहीं आ सकता। उसको बीटीएस में लज्जत जरूर महसूस हो सकती है, बिकॉज हर गुनाह में लज्जत है, बट वो खिंचा चला आएगा वापस, बिकॉज उसको पता है कि असल सुकून जो है, राइट, वो अल्लाह ताला के कलाम में रखा है, राइट। आई वाज टॉकिंग टू किड्स एट नम्स यस्टरडे, आई वाज सेइंग टू देम कि आई गिव यू अ चैलेंज दैट दिस कैंपस इज ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड, बट सुकून अगर इस कैंपस में कहीं है ना, वो सिर्फ मस्जिद में। थिंक अबाउट इट, सिर्फ मस्जिद में, हालांकि आर्किटेक्चरली मस्जिद सबसे सादी बिल्डिंग है। That's a choice. I mean, you can feel it, you can disagree with us, but that's how it is. So there's something that we're missing on to. So look at the deen from this perspective of ishq and muhabbat. सहाबा ने ये सीखा था, बट हाँ वो बैलेंस ही इल्म से होती है ना फिर, बिकॉज यू ब्लो इश्क आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो देन यू आर एंटरिंग द रेल्म ऑफ बिदात, राइट। तो इश्क को इल्म गवर्न करता है, बिकॉज वो सिखाता है कि कितनी मोहब्बत कहाँ है कैसे नहीं है, एंड that's how it is. But a lot of us actually want something very different. You know, we want what you call is Allah free Islam, Sunnah free Islam, Taqwa free Islam. You tell me. I mean, some of you are saying nahi, yes, but that's the reality. People want Allah free, Sunnah free, Taqwa free Islam. If you're going to have a Allah free, Sunnah free, Taqwa free Islam, तो yes आप मुसलमान तो होंगे, बट आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो you'll never be able to connect to that Islam. कुछ भी नहीं कर सकोगे। If you are saying nahi, I don't want that, then prove this through your actions कि I don't want an Allah free Islam. तो ask yourself कितनी दफा दिन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सोचा, कितनी दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा, कितनी दफा ये सोचा कि अल्लाह ताला, तकवा क्या है, कॉन्शियसनेस है ना, कितनी दफा ये सोचा कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये तो हम बहुत सोचते हैं हम कैसे लग रहे हैं, मैं कैमरे के सामने कैसा लग रहा हूँ, लोग क्या जज करेंगे। How many times do I think that what is Allah going to be thinking of me? What is Allah's general opinion of me? How many times have I thought of that? Right? And if none of this works, you know, ask yourself this one question कि थोड़ी देर के लिए ना ये जो एक कंफर्ट हमने एस्टैब्लिश किया ना कि अल्लाह बड़े गफूर और रहीम है और वो माफ़ कर देंगे और एंड में सारे मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सिर्फ एक बात बताओ कि इफ़ वी आर गोइंग टू लिव अ लाइफ विच इज़ प्रैक्टिकली अल्लाह फ्री, सुन्ना फ्री, तकवा फ्री, कुरान फ्री, राइट, all free of all major things that we know we have to do, but yet we call ourselves a Muslim, क्या मकसद क्या है हमारे जिंदा रहने का। मुझे बहुत वो पावरफुल लगी थी, एक कोट मैंने कहीं देखा था कि अगर आप मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़े तो आप कर क्या रहे, सोचो थोड़ा क्या कर रहे हो फिर आप, यानी किस लिए, फिर आप किस लिए मुसलमान हो। तो आप ये बता दो कि अगर इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना, अगर मैंने कुरान से हिदायत नहीं लेनी,
ठीक है ना? अगर मैंने नबी की ज़िंदगी को साइड पे रख देना है, सुन्नत कह के, ऑप्शनल कह के, अगर मैंने अल्लाह के बारे में सोचना ही नहीं है, तो मेरा मकसद है क्या? आई डोंट थिंक यू कैन हैव एनी आंसर टू दैट. एक ही आंसर हो सकता है कि आई शुड बी एन एथियस्ट और एग्नोस्टिक. सो गो बी वन. Go make your choice and be an atheist and see what darkness lies there. वो जो एक हसरत है ना, वो भी पूरी हो जाएगी. And if not, have another question to yourself. If I'm living that Sunnah free, Allah free, Taqwa free, Quran free Islam, why in the world should Allah subhanahu wa ta'ala put me in Jannah? What have I and you done to deserve Jannah? Can we present any part of our life to deserve Jannah? एक दिन भी प्रिजर्व कर सकते हैं हम अल्लाह ताला को. अल्लाह इस दिन पे हिसाब ले लें, जन्नत भेजें सीधे मुझे. These are common sense questions यार. This is pure common sense जो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही. And you might find my words harsh. I'm sorry for that, but you know there really is no time. Don't you see कि कुफर किस जोर के साथ लगा हुआ है now? Don't you realize that there is no neutral ground now? एक ज़माना होता था कि बहुत दीनदार, बहुत दुनियादार, and then बीच के नेक शरीफ लोग कुछ नमाजें पढ़ ली, कुछ अच्छे हो गए, ये वो कर लिया, सर पे दुपट्टा भी रख लिया. There is none of that now. Kufr is coming all out. It is, आपको खींच रहे अपनी इस तरफ ऐसे बुरी से कोई बच नहीं पा रहा उससे. So we are in a state of war actually, and we have to choose a side कि आप किस तरफ होना चाहते हैं. The rest, the journey is with Allah subhanahu wa ta'ala. तो वो इसको ऐसे समझाते हैं कि हमारे दीन में ना दो चीज़ें हैं. एक अकीदत वाला शागिर्द है और एक मोहब्बत वाला शागिर्द है. The अकीदत वाला शागिर्द is just a surface level person. वो आपसे मिलेगा, बड़ी अच्छी तरह मिलेगा, very nice in the face of everything. तो हम actually, the मोहब्बत वाला is the real one. So we are all actually अकीदत वाले मुसलमान. Yes, we will claim कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम अल्लाह ताला को भी मानते हैं, हम रिचुअलिस्टिक इस्लाम में भी बिलीव करते हैं, राइट? तो हम जनाजे पे ज़रूर जो है ना चंद इस्लामी चीज़ें करेंगे, निकाह ज़रूर हम जो है बादशाही मस्जिद में करेंगे. ऐसे ही है ना. इसलिए मस्जिद जाने में तो मौत थी हमें. सिर्फ जब बादशाही मस्जिद का हमें पता चला कि ये ट्रेंडिंग है, ये ज़बरदस्त है, तो हमने कहा कि लेट्स टेक आवर फहाशी एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन बादशाही मस्जिद. सुभान अल्लाह. यानी द प्रॉफिट केप्ट स्क्रीमिंग दैट बरकत इस चीज में है कि मस्जिद में निकाह कर लो, एंड योर सेक्युलर लिबरल मैसेज ऑफ दिस कंट्री विल नेवर वॉक इनटू अ मस्जिद फॉर द निकाह. वो मौलवी को भी जो है ना वहीं बुलाएंगे शादी हॉल पे. मौलवी साहब तो 5,000 के पीछे लगे, वो क्या करे. एंड देन वन फाइन डे दिस यूथ डिसाइडेड कि नहीं हम मस्जिद जाएंगे, बट ओनली 2 मस्जिद्स. अफसोस वो मस्जिद हरम नहीं है, वो बादशाही मस्जिद है और मस्जिद वजीर खान है. क्योंकि तस्वीरें अच्छी आती है ना, क्योंकि सारे उधर ही करवा रहे हैं. तो 1.5 लाख का शूट है और मस्जिद में निकाह भी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत मुश्किल रास्ते पे चल रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल रास्ते पे चल रहे हैं. वी शुड बी स्केयर्ड एंड टेरिफाइड ऑफ द फैक्ट कि वी हैव स्टार्टेड टेकिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर ग्रांटेड. The Prophet, Allah Ta'ala says about the Prophet, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ, for you. Allah Ta'ala मुझे आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए his lifestyle has been the best of ways, right? And हम कहते हैं नहीं, we don't care about that. We don't have any love for the sunnah of the Prophet. Following ittiba is a later state of the heart. It's a later thing. Loving the sunnah of the Prophet is the first step. We don't even have that love actually. Because a lot of us think that ये जो सुन्नत का रास्ता है ना, ये कोई मुजाहिदा है बहुत बड़ा. ओ मैंने यानी इतना बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह ताला पे कि मैंने चंद इंच अपनी दाढ़ी ग्रो कर ली. इतना बड़ा एहसान कर दिया कि मैंने अपने सर पे दुपट्टा रख लिया. इतना बड़ा एहसान कर लिया कि मैंने लिबास जो है ना वो कुछ खुला पहना, जैसे हमारे नबी की आपको हदीस में मिलता है. किसके बाप के सर पे एहसान कर रहे हैं हम? कोई एहसान नहीं किया आपने. There is nothing in that sort of the fact. You have to understand this fact that Sunnah is doing something with love. So we all have to think
दैट ये फ्यूल है, अगर ये नहीं होगा कोई प्रोग्रेस नहीं होगा. एंड द लास्ट थिंग दैट आई डिडंट वांट टू से इज द फैक्ट कि देन देयर आर सम ऑफ अस कि we do get that fuel, right? Whether that is through bayan, that is through introspection, some form of ibadat, but then we have holes. Then we have holes कि हम उन holes के जरिए से सब lose out कर देते हैं. And those holes are the sins that we continue to do. And these are those sins, ये वो गुनाह है जिनसे हम तौबा करने का इरादा ही नहीं रखते. वो गुनाह जिस पे आप बार बार तौबा कर रहे हो, not a problem. Saying this in context, right? उसका मसला नहीं है, मसला उस गुनाह का है या उन गुनाहों का है जो आपकी मेरी जिंदगी में है. एंड हम बयान पे भी जा रहे हैं, अपनी तरह से नेक शरीफ भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े क्लियर हैं कि नहीं यार ये गुनाह नहीं छोड़ना, गाड़ी नहीं चलेगी फिर भी. तो एक आखिरी सवाल जो आप सबको हमें करना है वो ये है कि what in the world is stopping us from leaving those sins? What is it? यानी why are you not leaving that sin? क्या आपको क्या लग रहा है आप ज्यादा समझदार हैं अल्लाह के नबी से कि रसूल अल्लाह ने कहा कि मत करो, ये गलत है, इसमें नुकसान है, आपने कहा नहीं मुझे ज्यादा पता है, उनको क्या पता था. अल्लाह ताला ने कुरान में कहा इसमें नफा नहीं है, इसको छोड़ दो, आपने कहा नहीं अल्लाह आपको क्या पता, मैं बताऊंगा आपको. I mean, that's the version of atheism for me actually. You're denying what your Lord is saying. You're saying, nahi. I'll give you an example of that. Allah Ta'ala has categorically said in the Quran that interest is haram. I couldn't care less what Falana Sahab on TV says or this person says. Interest is haram, period. There is no doubt about that. Why are people arguing about this? कि नहीं ऐसे नहीं होता, इतने मौलवी ना बनो आज का. Why are we even listening to this trash? ये ज़्यादा समझदार पैदा हो गए. इन्होंने चंद लफ्ज़ इकोनॉमिक्स के पढ़ा लिए तो ये मैं बताएंगे कि क्या चीज़ है. तो मेरे पास एक मैं खुदा की मानूं या इनकी मानूं जिनकी हालत ये है कि शाम तक नशे में पड़े होते हैं, जो अपनी जिंदगी पे खुद ना अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए ना मर्जी से जाएंगे. What in the world are we thinking? So that's what some of us actually ideologically, practically are doing कि हम कुछ गुनाह छोड़ने को तैयार ही नहीं. एंड जब कोई हमें उस पर तंबीह करता है, उसके बारे में बताता है, बिकॉज हमें पता है, राइट, तो हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को. सो यू ट्राई टेलिंग समबडी, मिसाल के तौर पे कि सूद हराम है, वो आपको इस्लामिक बैंकिंग के फ्रॉड होने पे लेक्चर देना शुरू कर देगा. तो मैं हमेशा उसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ इस्लामिक बैंकिंग चलो मान लेते हैं सबसे बड़ी फ्रॉड चीज़ है, उससे सूद हलाल हो जाता है. ये ऐसे ही ना बच्चे को यार तुम गलत करो सर वो भी तो कर रहा है. What does that have to do with the fact वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा? And I'm not saying Islamic banking fraud. I'm just saying focus on what Allah Ta'ala is saying in the Quran. मौलवी ये कर रहे हैं, फलाना मौलवी तो ये कहता है वो करता है. आपने दीन किसी मौलवी की वजह से फॉलो करना है या अल्लाह और उसके नबी की बात की वजह से फॉलो करना है? We are not following deen because of any मौलवी. मेरी वजह से आप दीन पे नहीं, आप अपनी वजह से दीन पे. Honestly, you're not here because of Naseeha Institute. You're not here because Arsalan Ahmed is here. You're here because you want Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, I'm the same. People on this side tend to think often कि हम खुदा बन गए. I might be worse than a lot of you because मेरी अपनी जंग है. But we have to recognize and accept the fact कि हमें गुनाह छोड़ने हैं. वज़रु ज़ाहिर अल-इस्म व बातिन. हमें हर गुनाह at least इरादा तो करो यार. Say it out. Express it. Talk to people who are sincere, better than you in deen, have knowledge. कि यार ये गुनाह है मैंने छोड़ने मुझे बताएंगे. Some of us are not even willing to have that conversation with anybody. So, if you walk out of this talk not being single, नहीं समझे? गैर शादीशुदा लोग, अगर आप इस बयान से बाहर निकले और अभी भी आपकी गर्लफ्रेंड हुई, आपके लिए बहुत परेशानी की बात है. अल्लाह की कसम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी तुमसे नहीं पूछूंगा, ना मैंने आप में से कभी किसी से पूछा है. बट कल क़यामत के दिन हमारे नबी के सामने जो रुसवाई आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना, मैं आपको सिर्फ उससे खबरदार कर रहा हूँ. क्योंकि जो आप किसी की माँ बहन और बेटी के साथ कर रहे हो ना, डरो उससे. इफ यू वॉक आउट ऑफ दिस टॉक स्टिल थिंकिंग कि नहीं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा तो म्यूजिक सुन लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, बहुत परेशानी की बात है. If you walk out of this talk, the sisters still thinking, क्या फर्क पड़ता है, इस्लाम में पर्दा नहीं है, दिल में पर्दा होना चाहिए, ये है वो है, it's a huge problem. You have to walk out thinking
मैं गलत था, मैं गलत हूँ और मुझे अपने आप को ठीक करना है। दीन गलत नहीं था, दीन को ठीक नहीं करना, दीन बिल्कुल सही है, वो 1400 साल से अपनी बात पे कायम है। एंड पूछो और देखो और खुद फील करके देख लो कि जो अपने आप को दीन के ताबे बनाता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को कैसे संवारते हैं। एंड स्टॉप विद दिस नोशन कि फलाने मौलवी ने ऐसे किया और ये किया। चंद बुरे मौलवियों की मिसालों से डोंट मेक दिस एन एक्सक्यूज, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन सेल्फ। आई रिमेंबर वन ऑफ माय टीचर्स सेइंग दिस दैट अगर एक बंदा 10 लोगों को देख के कहता है ना कि इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, और हर एक की बुराई को ले लेता है वो, बिकॉज वो ये कर रहा था, ये फलाना, कहते हैं कि रियलिटी ये होती है कि ही हैज टू रियलाइज कि वो सबसे बुरा बन जाता है, बिकॉज हर एक में एक एक बुराई थी और इसके अंदर सबकी बुराई है। तो ये जो हमने गालियां देना शुरू की हुई है पूरे माशरे को, असल में हम एक्सक्यूज बना रहे हैं अपने लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस चीज़ का इरादा करें कि हम अपने आप को सबमिट करना चाहते हैं अल्लाह के आगे। एंड रबीउल अव्वल एक ऐसा महीना है अमंगस्ट अदर मंथ्स कि जहाँ आई डेफिनेटली फील कि पीपल हैव अ हाइटेंड सेंस ऑफ लव, मोहब्बत, लॉन्गिंग, बिलोंगिंग, ताल्लुक विद द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, because of the fact कि there are some narrations that suggest that he was born on this date, हालांकि इस पे कुछ दूसरी राय भी है, और the fact कि some also suggest कि he left on this date। ये अल्लाह ताला के एक्चुअली एक बहाने हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को किसी ना किसी बहाने से कुछ ऐसा करते हैं कि वो नरम पड़ जाते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी से मैक्सिमम रिटेन गेन करना हमारा काम। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट द दीन इज दिस दैट इट इज नेवर टू लेट, इट इज नेवर एवर टू लेट। तो ये जो सारी डांट आपने 1 घंटे की मेरे से सुनी, आई कैन अपोलोजाइज फॉर दैट इज वेल, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जैद तो यही सोच रहा है, ठीक है। इसमें एक बात याद रखो कि it's the way we sit here united for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, asal कामयाबी ये है if we could sit like this with our Nabi sallallahu alaihi wasallam, and it would be really painful to see some of us burning in hellfire on that day. This is not a talk where I am trying to prove myself as better just because I carry a beard or I give the talk. It's about all of us recognizing कि यार हम सबका एक मकसद था। एंड सबसे बड़ी फिरका वारियत जो है ना, वो हम सेक्युलर लोगों ने किया कि हम अपने मकसद से हटके अलग अलग दुनिया की चीज़ों में लग गए। हनफी शाफी मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, देवबंदी सलफी मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, जितना ये मसला है कि हमारे मैसेज बिखरे हुए हैं और सारे के सारे अलग अलग तरीके से अल्लाह को नाराज़ करने की कोशिश में लगे हुए, अलग अलग तरीके से जो है ना गुनाहों पे मुलव्वस है। ये फ़िरके हैं जो असल प्रॉब्लम है, वो फ़िरके इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। हम इसको ठीक कर लें, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करें, इसकी कोशिश करें कि अल्लाह अगर आपने मुझे ये बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई है तो आप मेरे लिए खैर चाहते होंगे, तो मुझे अपने आप को दीन के ताबे बनाने की तौफीक अता फरमाए, मेरे लिए दीन के रास्तों को आसान फरमाए, मेरे लिए इस रास्ते पे चलना आसान फरमाए, मुझे इस्तिकामत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। सुब्हान रब्बियल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, मेरे रब हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जो दिन में किए वो भी माफ़ फरमा, जो रातों में छुप छुप के गुनाह करते रहे पर तू देखता रहा, हमने शर्म ना की, अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा। अल्लाह जो गुनाह करके भूल गए उनको भी माफ़ फरमा, जो आगे करेंगे मेरे मौला उनको भी माफ़ फरमा देना। ऐ मेरे मौला, हमने हज़रत आयशा से सुना हमारे नबी हर रात हमारे लिए मांगा करते थे कि मेरे आने वाली उम्मत के हर गुनाह को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह उनकी इस दुआ की एवज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। मेरे रब, हम आपको राज़ी करना चाहते हैं, ये सब आपको राज़ी करने आए हैं, इस आने को कबूल कर लीजिए, हर कदम पे अजर नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमें दुनिया के बजाय दीन को सबकत देने की तौफीक अता फरमा, दीन को मुकद्दम रखने की तौफीक अता फरमा, दीन पे चलने की तौफीक अता फरमा, दीन पे इस्तिकामत नसीब फरमा, दीन की मोहब्बत अपने दिल में डाल दीजिए। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा। ए मेरे रब, सहाबा कराम कितने खुश नसीब थे कि वो आंखें खोलते थे
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने होते थे, वो मस्जिद जाते थे तो हमारे नबी उनके इमाम थे, वो उनको कुरान पढ़ के सुनाते थे, उनको समझाते थे, उनकी से गलती होती तो उनको दुरुस्त करते थे। ए मेरे मौला, हम इस सब से बहुत दूर हैं, हमने कुछ नहीं देखा, हमने हर तरफ फितना फसाद देखा है। ए मेरे रब, तू हमारे हाल पे रहम कर, तू हमारे हाल पे रहम कर। अल्लाह, हम आपको अपनी कमज़ोरी पेश करते हैं, जैसे हमारे नबी ने दुआ की थी ताइफ में कि ए मेरे रब, हम अपनी कमज़ोरी आपके सामने पेश करते हैं और आपको कहते हैं कि आपकी रज़ा मकसूद है, आप हमसे राज़ी हो जाइए। अगर आप राज़ी हो जाएँ, हमें दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं। ए मेरे रब, हमारे लिए आसानी पैदा कर दीजिए। इस रास्ते पे चलना नहीं आता, तू हमें चला दे। नाउमीदी से बचा ले, कुफ़र से बचा ले, एक दूसरे को बुरा भला कहने से, एक दूसरे को जज करने से बचा ले, एक दूसरे का मुआविन बनना नसीब फरमा। और इसके साथ-साथ जो दुनिया में परेशानियाँ हैं, उनको भी सुलझा दीजिए। और अल्लाह, हम खसूसी दुआ करते हैं कि हमारे बहन भाई जो इस वक्त सिंध में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में कहीं भी सैलाबों की वजह से परेशान है, मेरे मौला उनकी मदद फरमा। अल्लाह, हम उनकी तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, हम उनके दर्द को नहीं समझ सकते, पर मेरे रब, तू हमें उनकी खिदमत के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस वीराने में, इस परेशानी में, जहाँ हम शायद चंद पैसे दे के समझते हैं कि हमने उनके लिए बहुत खर्च कर दिया है, वो तो महीनों से अब तन्हा बैठे हैं, आगे भी तारीकी है। ए अल्लाह, उनकी दुनिया आखिरत को संवार दीजिए, उनको सब्र नसीब फरमाइए, उनको सेहत की नेमत अता फरमा, उनके घरों में छतें डाल दीजिए। और ए मेरे रब, उनको उनको इस मुश्किल की एवज़ बेहतरीन आखिरत में अजर नसीब फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर फरमा। और अल्लाह, हमारे दिलों को इतना नरम फरमा कि हम दूसरे की परेशानी को देख के अपनी नेमतों पे शुक्र अदा कर सकें, अपनी ज़िंदगी में ज़ुहद इख्तियार कर सकें, लोगों की मदद को पहुँच सकें, ना कि हम अपने नशे वाली ज़िंदगी में, दुनिया में मुलव्वस रहें। ए मेरे रब, हर चीज़ पे सवाल होना है। अल्लाह, हमारा सवाल बहुत सख्त होगा। ए अल्लाह, तू हमारे से आसान सवाल करना, तू हमारे से आसान सवाल करना। हम तेरे बिगड़े हुए बंदे हैं, तेरी नेमतों में पले हैं, हमारे पास आपको देने के लिए एक अमल कोई नहीं, बस एक आपके नबी की निस्बत है, एक उनसे मोहब्बत का दावा है, वो भी झूठा है। पर अल्लाह, हम इस रास्ते से हटना नहीं चाहते, तू हमें कबूल कर ले, कमज़ोर समझ के कबूल कर ले। अल्लाह, अल्लाह आसानी कर दे, जो माँगा वो भी अता फरमा, जो माँगना चाहिए था नहीं माँग सके, वो भी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।